Hello everyone, myself Ritu Gupta, Assistant Professor Biani Girls College. Today I am going to deliver my lecture on MOT, that is Molecular Orbital Theory. Now atoms combine to form molecules. Now how these molecules are formed, the formation takes place is via covalent bonding. Now MOT will explain how the bonding will takes place. First of all, atoms combine to give molecules. Now for example, let's take an example of B2, that is diboron. Now B2 is formed by the combination of two boron atoms and form the molecule B2. MOT will explain how this will be takes place. Second, atomic orbitals combine to give molecular orbitals. Similarly, like atoms combine to form molecules, the atomic orbitals combine to give molecular orbitals. Now, molecular orbitals are formed by atomic orbitals, but this process isn't completely a hypothetical process. Actually, this is not going to take place, but for our understanding, we take this process. So mixing of orbitals will be takes place via additive mixing and via subtractive mixing. Now what is additive mixing? Additive mixing here, when two molecular orbitals combine that are having the same symmetry, then they combine to form a molecule. And here the formation that will be takes place have the more probability of finding electron in between the nuclei. And another one is the subtractive mixing. Here least probability of finding electron in between the nuclei. That means when the molecules of different symmetry combines via subtractive mixing, then the probability of finding electron in between the nuclei will be the minimum. Third, molecular orbitals follow the rules which are followed by atomic orbitals. अब atomic orbitals कौन से rule follow करते हैं? That is Pauli's rule, Aufbau rule and Hund's rule. What is Aufbau rule? That is N plus L rule. Hund's rule, that is maximum multiplicity rule. Maximum 2 electrons will be filled in an orbital. Similarly, in molecular orbitals, same way atomic orbitals takes place. And in Pauli's rules, these are formed by molecular orbitals. Now, next. मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वाया टू मिक्सिंग एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव. अब देखो एडिटिव मिक्सिंग के लिए क्या होना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री. अगर उनकी सिमेट्री सेम होगी तभी तो वो मिक्स हो पाएंगे इजीली. और सेकंड है लेस एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल. जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी. एज वी नो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में जितनी कम एनर्जी होगी उनके बीच में क्या होगी? स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब देखो कंस्ट्रक्शन होता कैसे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, हम दोनों तरीके से समझेंगे, वाया एडिटिव मिक्सिंग एंड वाया सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग. अब देखो जब एस ऑर्बिटल है, एस का कैसे होती है? स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की. तो जब हम कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? दो स्फेयर कंबाइन होकर कैसा एक इस टाइप का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा. अब देखो एडिटिव मिक्सिंग हुई है. अगर यहाँ पे हम आई की बात करें, व्हाट इज आई? आई हेयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. अगर मैं यहाँ पे सेंटर से सिमेट्री देखूँ तो क्या यहाँ पे सब जगह से इक्वल सिमेट्री है? वी कैन बाइसेक्ट दिस स्फेयर इन equal part from the center. That means here I is present. अगर I present है तो इस molecular orbital को हम क्या बोलेंगे? एक टर्म दी हुई है सेंटर सिमेट्री के लिए, वो होती है जिरेड. That means अगर किसी molecular orbital में I present है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिरेड molecule बोलेंगे. ओके, तो ये हो गया आपका सिग्मा. अब सेकेंड वे, एक हो गया हमारे एडिटिव मिक्सिंग से, सेकंड वे हो गया सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग से. अब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग अगर करेंगे तो सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग का मतलब क्या है? लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो अगर लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे एक नोड का फॉर्मेशन हो जाएगा.
वहाँ पे जब हम एडिटिव सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करेंगे तो अब देखो, जब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से देखेंगे तो क्या हम इन दोनों को इक्वली बाइसेक्ट कर सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑर्बिटल आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑर्बिटल आ रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। तो इस वजह से क्या यहाँ पे आई प्रेजेंट है? नो, यहाँ पे क्या है, आई एब्सेंट होगी, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? अनजिरेड मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया है। ठीक है, ये तो हमारी बात हुई देखो एस की। अगर अब हम बात करते हैं पी की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीजेड ऑर्बिटल की बात करते हैं। पीजेड ऑर्बिटल में क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे जब हम सब एडिटिव मिक्सिंग करवाएंगे तो सिमिलर वे में जैसे हमारी एस की हुई वैसे ही क्या हो जाएंगे, लोब्स कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बना लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर मैं सेंटर से बात करूँ इसके बाइसेक्ट करने की तो क्या इक्वल पार्ट में हो चुका है डिवाइड, इक्वल पार्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आई प्रेजेंट है। तो पी जेड एक कैसा ऑर्बिटल हुआ? जिरेड ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करते हैं, पी जेड में ही हम सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से लोब्स फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे जब हमें कंबाइन करना होगा तो लोब्स क्या होगा, पॉजिटिव माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये एज इट इज रहा। तो जब हम सेंटर सिमेट्री से बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली बाइसेक्ट नहीं होगा इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई एब्सेंट होगा और ये क्या होगा, अनजिरेड होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल चला गया। तो देखो ये तो बात हो गई पीजेड की। पीजेड में हमने देखा कि यहाँ पे आई प्रेजेंट है सिग्मा में और सिग्मा स्टार में आई एब्सेंट है। लेकिन जब हम पी एक्स और पी वाई की बात करते हो, जो रिजल्ट आएगा हमारा आई के रेस्पेक्ट में वो क्या आएगा, रिवर्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे तो जो पी जेड था उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग थी, लेकिन जो पी एक्स एंड पी वाई होता है उसमें कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइडवाइज ओवर सॉरी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। तो मैं बताती हूँ आपको वो कैसे होगी। With world-class education and excellent placement record, Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. पीजेड में हमने जब किया तो क्या एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से जो पी एक्स वाला था वो सिग्मा क्या आ रहा था आपका, आई प्रेजेंट था और सिग्मा स्टार में आई एब्सेंट था। लेकिन जब हम बात करते हैं पी एक्स एंड पी वाई की, तो इसमें क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ना होगी, कैसी होगी, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इनकी सिमेट्री किस टाइप से होती है, इस टाइप से ओरिएंटेड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब हम साइडवाइज ओवरलैपिंग करवाएंगे, एडिटिंग करवाएंगे तो कैसी होगी, देखिए ये पॉजिटिव है तो क्या कंबाइन होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव वाली एक साइड आ जाएगी और नेगेटिव वाली एक साइड आ जाएगी। तो अगर अब हम यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो जब हम सेंटर से देखेंगे तो क्या दोनों एनवायरनमेंट सेम है, नो, यहाँ पे ऊपर की साइड अबव द प्लेन कैसा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव है, और डाउन द प्लेन कैसा एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आई एब्सेंट होगी और अनजिरेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पाई ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, अनजिरेड होता है। बट वाया सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग जब हम करेंगे पी एक्स और पी वाई के केस में तो क्या होगा, पाई स्टार और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। देखो अब जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव तो यहीं आएगा, नेगेटिव यहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव जब इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, अगर मैं अब यहाँ से एक प्लेन पास करूँ तो क्या इधर लोब्स इक्वल है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मैं इधर से अगर बात करूँ, बाइसेक्ट करूँ तो क्या है, इधर नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि सेम इन्वायरमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या है, आई प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, जिरेड होगा। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि अगर सिग्मा है तो क्या हो रहा था, आई प्रेजेंट था, और सिग्मा स्टार था तो क्या था, आई एब्सेंट था। और अगर मैं पाई की बात करूंगी तो पाई में क्या है, आई एब्सेंट है, लेकिन पाई स्टार में आई प्रेजेंट है। तो ये हो गई हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन होने की बात। अब देखिए इतना तो हो गया है, ठीक है। अब जो V2 होता है, C2 होता है, लाइक जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं B2, C2, N2, ये सब किससे फॉर्म होते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही फॉर्म होते हैं। ओके अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ रहे थे,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब देखिए फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बन रहा है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। तो मैं एक एग्जांपल, मैं इस टाइप से एक डायग्राम बनाया, अब देखो एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे हम ले लेते हैं B2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, बोरोन का। अब देखो एक बोरोन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे। इसका मतलब जो B2 का फॉर्मेशन होगा वो किस वजह से होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, हम बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स के हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2। पहले अगर मैं बोरोन की बात करूँ, सिर्फ बोरोन की, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो कितने होंगे 1s2 2s2 2p1। सिमिलरली जो सेकंड बोरोन का आइटम है उसमें भी कितने होंगे, इतने ही होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, सिग्मा में जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1 2 यहाँ पे गए, ठीक है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे सिग्मा स्टार में, तो यहाँ पे हो गए 3 4। अब देखो फिर उसके बाद में 5 6 ये इसमें जाएंगे आपके किस में, 2s वाले में, सिग्मा में। देन 5 6 7 8 यहाँ पे आपके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाएंगे, तो देखो लोअर एनर्जी किसके पास है, हमारे पाई वाले के पास है लो एनर्जी, तो किस में जाएंगे, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल फॉलो करता है, इसलिए दोनों के पास इक्वल एनर्जी, तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px में जाएगा, एक किस में जाएगा, पाई 2py में जाएगा। और लोअर एनर्जी इसलिए पहले किस में जा रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है, और सिग्मा 2pz से भी कम किसकी है, पाई 2px पाई 2py की है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे, यहाँ पे फिल होंगे। तो इस वे में क्या है, B2 का फॉर्मेशन होगा। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, लाइक कार्बन C2 ले लिया, तो C2 में कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2p2 हो जाएगा, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है बॉन्डिंग होगी, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ये किसका केस था, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूलर आयन का। जैसे एग्जांपल हो गया N2 हो गया, C2 हो गया, O2 हो गया, तो इन सब में कैसी फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होगी। तो ये थी हमारी MOT की बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और लाइक कीजिए। थैंक यू।